that? 17. Somebody's arithmetic has to be good. It has been 17 years. That's a lot of time. Yeah, that's a lot of time. I have had the good fortune of meeting her on our Badrinath Yatra. Remember a few years back, a couple of years back, I had gone to Badrinath, and that's where I found this gem, Janvi Priya Mataji. She was there with a group of friends, and we instantly connected. And I also had the opportunity. She's from Surat, Gujarat, and I had the opportunity to hear her live when I visited her in Surat shortly after the Badrinath Yatra, and I was very mesmerized by the way she speaks. She speaks little, but she speaks volumes in those few sentences. So, without taking, she has three lovely daughters who are they're all chips of the old block. All of them are very proficient, and Mataji has trained them so well in Kirtan and in the philosophy that, in fact, we can invite each of them also to talk to us. They're so good. They have been doing a lot of classes themselves in this lockdown period. So I'm so happy to welcome you, Janvi Priya Mataji. She fondly calls me Sakhi, and I do the same. We are spiritual sisters, and let's all welcome her by saying a big Hari Bol, all of us. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Thank you so much. Well, I remember, the day we met, बद्रीनाथ यात्रा पे हम लोग डिनर आई थिंक लंच ले रहे थे और लंच के बाद विशाखा प्रिया herself she came to me and she said आप लोग कहाँ से हो सूरत से और सूरत से सुन के she was so happy, her happiness had no bounds क्योंकि it's a native place and very friendly, very sweet, very bubbly और it was a little surprising, but very pleasant surprise that we invited her and she came to Surat to meet our family. That was such a pleasant surprise. This is the beauty of Krishna consciousness. You meet such wonderful people. ऐसा लगता है कि जरूर इनके साथ हमारे पिछले जन्म का कोई नाता है. इसलिए हाँ हम एक दूसरे के साथ इतना कनेक्टेड फील करते हैं. कभी-कभी लगता है कुछ लोगों से हम रोज मिलते हैं फिर भी वी डोंट फील कनेक्टेड. पर कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जिनसे हम कभी भी मिले 1 साल बाद 1 महीने बाद हाँ कभी भी बात करें वी फील कनेक्टेड. दिस इज ब्यूटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस. अगर आपसे कोई पूछे कि आपको कृष्ण कॉन्शियसनेस में क्या क्या मिला है तो वन बिगेस्ट गिफ्ट इज ट्रू फ्रेंड्स, रियल फ्रेंड्स. ये गिफ्ट है कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो शायद हमें इस भौतिक जगत में अदरवाइज मिलना बहुत मुश्किल है. अच्छे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है. और कलयुग में तो ये और भी मुश्किल है जहाँ पे हर चीज में कंपटीशन, एक दूसरे को नीचे दिखाना, एनवी इतना स्ट्रांग हो गया है कि ऐसे में एक अच्छा दोस्त मिलना इट्स अ गुड फॉर्च्यून. और कृष्ण कॉन्शियसनेस में आपको बहुत सारे मिलेंगे. सो विशाखा प्रिया इज वेरी नाइस सखी फॉर मी एंड very sweet person. I really like her. I really love her. And I'm so grateful to Lord and Krishna consciousness, Srila Prabhupada, that I got this wonderful Sakhi. This is my good fortune. Thank you so much. So, आज हम पढ़ने वाले हैं भगवद गीता चैप्टर 2. I was telling विशाखा प्रिया कि हमने जो भगवद गीता हमने किया था कुछ लॉकडाउन के टाइम पे. Can I mute the people who are unmute? I mean, just to make the little peaceful environment. Is that okay? Yeah. Fine. Thank you. So I was telling विशाखा प्रिया कि हमने अभी रिसेंटली भगवद गीता किया था लॉकडाउन में. ओवरव्यू भगवद गीता किया था. भगवद गीता इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल बुक. आप जितनी बार भी पढ़ेंगे ना, मुझे लगता है मैं जितनी बार भी इसको खोलती हूँ मुझे लगता है ओ ये तो मुझे पता ही नहीं था.
दिस इज समथिंग न्यू आई केम टू नो फ्रॉम भगवद गीता. तो हम सब लोग साथ में मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद हम आज के विषय पर आएंगे. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये. Hare Krishna. So, thank you very much for making me the part of this beautiful family. This is a Bhagavad Gita overview. I'm sure मैं usually सबसे कहती हूँ कि भगवान कहते हैं अंत काले क्षमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. अगर आप अंत समय में मेरा स्मरण करेंगे तो आप मेरे भाव को प्राप्त होंगे, मेरे धाम को प्राप्त होंगे, मेरे चरणों में जगह प्राप्त करेंगे. इसलिए यहाँ जो भगवान शब्द कह रहे हैं दैट इज अंत काले च मामेव स्मरणम. ही सेइंग रिमेंबर मी. एंड यू नो व्हाट, स्मरण जो है वो अंदर की चीज है. जैसे भगवान ने कहा कीर्तनम तो चलो मुंह से कर दिया, भगवान ने कहा श्रवणम तो चलो किसी और ने हमें सुना दिया. लेकिन इन दोनों चीज़ों के लिए हम अपनी इंद्रियों पे डिपेंड है ना. पर जब हम बात करते हैं स्मरण की, इट इज़ समथिंग इंटरनल. अगर हमारी जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं वो डिफ़िकल्ट हैं, अनफेवरेबल हैं, किसी भी तरह से हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो भी स्मरण एक ऐसा शब्द है जो ये बताता है इट इज़ सो इंटरनल दैट इट डजंट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल कंडीशंस. And you can do smaranam anytime, anywhere, in any condition. But still there is a condition. स्मरण के लिए जिस वस्तु को आप स्मरण करना चाहते हैं वो आपकी अंतरात्मा में इतना गहरा होना चाहिए कि आपको स्मरण आ पाए. और वो भी उस समय में जब आप डेथ बेड पर हैं, जब आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप एक्सटर्नल कंडीशंस बहुत अनफेवरेबल हैं. कहते हैं मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है. उस कष्ट के समय आप किसे स्मरण करेंगे जिसे आपने पूरा जीवन अपना आधार बनाया है, जिस पे आप डिपेंड कर रहे हैं. जैसे हम अजामिल की कथा में सुनते हैं कि अजामिल नारायण नारायण बुला रहा था नामाभास की अवस्था में, बिकॉज ही हैड सो डीप अटैचमेंट विथ हिज यंगेस्ट सन कि जब उसने यमदूतों को देखा तो उसके मुख से अपने बेटे का नाम आया और वो बेबसी की अवस्था में था, होपलेसनेस से कि कौन बचाएगा मुझे. So this hopelessness we will feel, but the dependence, depend on what we have practiced all our life. हमने अपने आप को किस पे डिपेंड किया है और हमारे मृत्यु के समय उस क्रूशियल टाइम में हम किसको बुलाएंगे, किसको याद करेंगे, किसका स्मरण अंदर से आएगा, वो इस चीज़ पे निर्भर करता है कि हमने जीवन भर किसका स्मरण किया है. So it is important to स्मरण. और स्मरण का एक सिस्टम है. जैसे हमें एग्जाम देना होता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि दिस मटीरियल वर्ल्ड, जो मृत्यु का समय है, मटीरियल वर्ल्ड इज एन एग्जामिनेशन हॉल एंड द डेथ इज द लास्ट एग्जाम, फाइनल एग्जाम. तो फाइनल एग्जाम में जब हम पेपर लिखने बैठते हैं 3 घंटे का पेपर होता है,
लेकिन उस 3 घंटे के पेपर के लिए हम 365 days we prepare for 365 days to write our examination, which is just hardly 3 hours. आप उससे पहले भी ख़त्म कर सकते हैं. तो उस प्रिपरेशन में हमें सब कुछ लर्न करना होता है, हमें स्मरण करना होता है, और जब हम स्मरण करते हैं उसको रट्टा मारते हैं, धीरे धीरे वो हमारे जीवन में भी आना चाहिए. जब वो रियलाइजेशन बन जाता है ना, तब वो हमारी प्रवृत्ति बन जाता है, तब हमें बताना नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्वाभाविक हो जाता है हमारे लिए. लेकिन स्वाभाविक बनने से पहले उसे याद करना होता है. जैसे हम छोटे थे, केजी में, फर्स्ट में, तो हमें टीचर्स टेबल्स याद कराते थे. तो उस समय हमें पता नहीं था इस टेबल का यूज़ क्या है मेरे लाइफ में, टेबल्स क्यों याद करने हैं. मुझे याद है मेरी मम्मा मुझे बोलती थी कि अगर मैं तुझे नींद में से उठा के बोलूँ ना 9 5 जा, तो तेरे मुंह से 45 निकलना चाहिए. इतना टेबल्स अच्छे से लर्न होने चाहिए, एकदम तेरे दिमाग के एक हिस्से में एकदम क्लियर होने चाहिए कि मैं कुछ भी पूछूं टेबल्स में से तो तुझे याद होना चाहिए. और मैं मम्मा से पूछती क्यों टेबल्स याद करने हैं मम्मा, इनका क्या यूज़ है हमारी लाइफ में. लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं और उन टेबल्स को यूज़ करने लगते हैं, वी बिकम रियलाइज्ड सोल, टेबल रियलाइज्ड सोल. अरे टेबल्स याद होने से कितना इजी हो जाता है मैथ्स. हाँ, इट्स सो इजी, जस्ट कैलकुलेट एंड राइट डाउन. और कैलकुलेट भी क्या, पहले से ही दिमाग ने कैलकुलेट करके उसका आंसर फिक्स रखा है. एवरीथिंग बिकम्स सो फास्ट. धोबी का हिसाब हो, दूध का हिसाब हो, या मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस हो, टेबल आर द बेसिस. Similarly, Bhagavad Gita is the basis of our spiritual life. We must understand कि इसको ऐसे याद करना है, क्योंकि जब हमारा समय आएगा, जब भगवान को कोई रियलाइजेशन देना होगा, जब किसी श्लोका को हमारे हृदय में प्रकट होना होगा, तो वो तब होगा ना जब हमने पहले से उसे लर्न किया होगा, उसके ऊपर चिंतन मनन किया होगा, भगवान से प्रे किया होगा. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ दिस श्लोका. भगवान कहते हैं भगवत गीता रहस्य है. ये कैसा रहस्य है जो खुली किताब में लिखा है, और उसके साथ परपोर्ट्स में उसके सुपर मीनिंग्स भी लिखे. प्रभुपाद हैज गिवन अस द सुपर डुपर परपोर्ट्स. ऐसे परपोर्ट्स आपको और कहीं मिलेंगे ही नहीं. इतना ट्रांसपेरेंट अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता का आपको कहीं नहीं दिखेगा, प्रभुपाद ने हमें दिया है. तो फिर ये रहस्य कैसे है? Why Krishna is telling us this is रहस्यम? क्योंकि ये रहस्य एक कोड वर्ड से खुलता है. सब कुछ खुला है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अंदर जाने के बाद इसे एक बार और खुलना है, हमारे हृदय में प्रकाशित होना है. दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है. और ये कैसे प्रकाशित होता है? व्हाट इज द कोड वर्ड टू ओपन द एवरी वर्स ऑफ भगवद गीता? इट इज डिवोशन. और ये डिवोशन को डेवलप करने के लिए वी मस्ट स्पेंड टाइम विद भगवद गीता. जब नई नई शादी होती है ना, तो कहा जाता है if you want to be good wife and husband, spend time with each other. इसलिए कई बार आजकल तो स्पेशली शादी के बाद हस्बैंड एंड वाइफ को 10-15 दिन के लिए हनीमून पे भेज देते हैं. स्पेंड गुड टाइम विथ ईच अदर, अंडरस्टैंड ईच अदर, ताकि आप एक दूसरे के साथ जो जीवन बिताना है वो आप अच्छे से बिता सकें. So similarly, if you want to become good in devotion, same thing, you have to spend time with Bhagavad Gita. This is the basis of our spiritual life. सिद्धांत जानिए चित्ते ना करे आलस. सिद्धांत को जानने में महाप्रभु कहते हैं हमें आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा दृढ़ मानस बनता है भक्ति में. हमारी भक्ति अगर सिद्धांतों की नींव पे खड़ी होगी तो उसे कोई हिला नहीं पाएगा. कोई आके आपको कुछ भी बोले, कहाँ फंस गए हो आजकल, कुछ भी कृष्ण भगवान है. तुम्हारी ये कंजर्वेटिव जो सोच है ना, वो हमें अच्छी नहीं लगती. अरे भाई, सब भगवान है, हम सबको आदर देते हैं, तुम खाली कृष्ण को पकड़ के बैठ जाते हो. तो आप कह सकते हो कि नहीं, मुझे पता है भगवत गीता का सिद्धांत है ये. तो आप हिलेंगे नहीं, और आप हिलते हुओं को संभाल सकते हैं यदि हमारे अपने भगवत गीता के सिद्धांत स्पष्ट हों. तो हमेशा भगवत गीता को याद करना चाहिए, कुछ ना कुछ याद करते रहना चाहिए. यू शुड ऑलवेज कुछ ना कुछ एक प्रोजेक्ट होना चाहिए हमारा एवरी डे का, कि मैं इसको 8-10 दिन तक पढ़ूंगा, क्योंकि 8-10 दिन आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा. दैट इट विल बिकम नाउ योर एसेट. आपके
जो ब्रेन है, जो कॉन्शियसनेस है, जो हार्ट है, जो सोल है, उसका असेट बनता जाएगा और धीरे 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 वो उस डीप स्थान पे पहुंच जाएगा जहां से वो आपकी प्रवृत्ति में आ जाएगा, स्वभाव में आ जाएगा और मृत्यु के समय बिना कष्ट के वो ऊपर आ जाएगा। सो ये भगवत गीता का ओवरव्यू है। इट हैज 700 वर्सेस, 18 चैप्टर्स, 5 टॉपिक्स, 3 पार्ट्स एंड ऑफ कोर्स अनलिमिटेड विजडम। मैं हमेशा बोलती हूँ सब चीज़ों को अपने दिमाग में छाप लीजिए, क्या पता कौन सी चीज़ कब भगवान आपके हृदय में प्रकाशित कर दें। These are the 5 topics of Bhagavad Gita. I'm sure you all know, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में इसको किया भी होगा। ये 5 टॉपिक्स हैं भगवद गीता के। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल एंड कर्म। पर्पस ऑफ भगवद गीता, ये बार बार याद करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी कॉन्शियसनेस, कंटैमिनेटेड कॉन्शियसनेस के साथ में आते हैं इस प्रोसेस में। हम शुद्ध होने के लिए आए पर शुद्ध हुए नहीं हैं, इसलिए हमें भगवद गीता का पर्पस बार बार याद करना चाहिए। नहीं तो हम समझ लेते हैं भगवद गीता का पर्पस कि मुझे पढ़नी है, दूसरों को पढ़ानी है, मुझे इसको मास्टरी करनी है, मुझे श्लोकास याद करने। नो, दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता का पर्पस है हमें अज्ञान से निकालना। तो मैं भी अज्ञान में हूँ और मुझे भी अज्ञान से निकलना है। भगवद गीता का पर्पस है मुझे मदद करना। हाँ, हमारा जो भगवान के साथ रिश्ता है, इटर्नल रिलेशनशिप, वी ऑलरेडी हैव दैट रिलेशनशिप। मुझे याद रहा तू भूल गई, भगवान कहते हैं। हम दोनों का ये रिश्ता है, पर मुझे याद है तुम भूल गई हो, तो उसे रिवाइव करना है। हमारी जो हायर कॉन्शियसनेस है, जो हम हायर कॉन्शियसनेस तक जा सकते हैं, अदरवाइज वी आर एज गुड एज प्रभुपाद से सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स। हाँ, तो उससे हमें ऊपर करके एक हायर ह्यूमन कॉन्शियसनेस तक लाना भगवद गीता का पर्पस है, जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमको देहात्म बुद्धि से निकालना, बॉडीली कॉन्शियसनेस। कभी कभी कुछ लोग मुझे कहते हैं कि नहीं माता जी, आई एम नाउ क्वाइट अबव द बॉडीली कॉन्शियसनेस। अगर फीमेल है तो मैं बोलती हूँ कि ब्यूटी पार्लर कितनी बार जाती हो महीने में? अगर हम अभी भी ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं तो इसका मतलब है we are still not above the bodily consciousness. It's not I'm saying don't go to beauty parlors, but at least we should understand where do I stand. अगर हम अपनी जगह को नहीं समझेंगे तो हम कहाँ जाना है वो कैसे समझेंगे? अगर आपको गूगल में कहीं जाना होता है तो आप डेस्टिनेशन डालते हो, तो गूगल एक रास्ता बनाता है, आप कहाँ खड़े हो पॉइंट ए, आपको कहाँ जाना है पॉइंट बी, और ए और बी को मिलाने वाला एक रास्ता होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर डू आई स्टैंड। अगर हम ये समझ जाएं तो भगवत गीता एक मैप के समान है, जो आपको इस भौतिक जगत से उस आध्यात्मिक जगत तक ले जाने की क्षमता रखती है, रास्ता बताती है आपको। सो यू शुड नो वेयर डू आई स्टैंड, तभी तो एक रास्ता बनेगा। तो वो हमें इस बॉडीली कॉन्शियसनेस से ऊपर ड्रैग करती है और हमारी कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई करती है। जिस भी स्थिति में हम हैं, हम बहुत एनिमलिस्टिक हैं, हम आसुरिक हैं, हम डेमीगॉड कॉन्शियसनेस वाले हैं, जिस भी कॉन्शियसनेस में हैं, भगवत गीता हैज़ कैपेसिटी टू एलिवेट अस। हाँ, हमें अगर लगता है कि हम मोस्ट एलिवेटेड है, यू कैन सी भगवत गीता कैन कीप यू, कैन टेक यू अबव द 3 modes, above the all gunas. So ये हमारी कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई करती है। इसलिए भगवत गीता का अध्ययन अवश्य करते रहना चाहिए, हमें बार बार करना चाहिए। क्यों भगवत गीता मुझे पढ़नी है, क्या आवश्यकता है भगवत गीता पढ़ने की? सी, अगर हम भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं तो एनिमल्स भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, एनिमल्स भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी अपनी रक्षा करते हैं, हम भी अपनी रक्षा का प्रयत्न करते हैं। तो फिर फर्क क्या हुआ? सिर्फ मनुष्य योनि में आने के बाद ही हमें अपनी कॉन्शियसनेस को हायर करने के लिए एक चांस मिलता है। धर्म ही केवल अधिको विशेषो, धर्म विहीना पशु भी समाना, आहार निद्रा भय मैथुना। ये 4 चीजें तो पशु भी करता है। यदि हम अपने आप को मनुष्य समझते हैं तो कम से कम मनुष्य के स्तर पर तो आना चाहिए। इसलिए भगवत गीता हमें मदद करती है मनुष्य के स्तर पर आने में और उससे ऊपर जाने में।
आपने जरूर पढ़े होंगे इंट्रोडक्शन में, ये 5 टॉपिक्स हैं भगवत गीता के, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल एंड कर्म। इनमें से ये 4 टॉपिक जो ऊपर के हैं दे आर फिक्स, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। यू कान चेंज ईश्वर, नहीं इस बार कृष्ण नहीं, इस बार किसी और को बनाओ, बहुत बोर हो गए कृष्ण से, हम इलेक्शन से बनाएंगे, हम सिलेक्शन से बनाएंगे, नो सॉरी, आपका उस तरफ अधिकार नहीं है। भगवान भगवान है, फिक्स हैं। आपकी अपनी पोजीशन एज अ जीवा, मम एवांशो जीवलोके कृष्णा से इज फिक्स्ड। हम भगवान से क्वालिटेटिवली सेम है, लेकिन क्वांटिटेटिवली प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे एक गोल्ड का कण होता है और एक गोल्ड का माइन होता है, इतना फर्क होता है क्वांटिटेटिवली, but qualitatively a gold particle has the same quality as the gold mine in the gold in the mine. So we are qualitatively same, but we are quantitatively different, and that is called achintya bheda ved. We need to accept this fact. You can't change this fact. Then प्रकृति की स्थिति भगवान ने बताई, मैया अध्यक्षेण, मेरे अंदर काम करती है, हाँ मेरी दैवी शक्ति है। काल, कृष्णा से कालो अस्मि। तो ये 4 चीजें तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी स्थिति इस 5वीं चीज से चेंज कर सकते हैं, एंड दैट इज कर्म। और भगवत गीता हमें सिखाती है कर्म किस तरह से करना है, किस तरह से कर्म करें कि हम अपने कर्मों के द्वारा बंधे नहीं, बल्कि अपने कर्मों के द्वारा हम खुल जाएं। इस तरह से कार्य करें जैसे एक धागा, कभी कभी होता है ना धागा उलझ जाता है बहुत। तो अगर हमें ये फैक्ट पता हो, ये छोर पता हो कि धागा कहाँ से फंसा हुआ है, तो उसको हम खोल सकते हैं और इस उलझन को सुलझा सकते हैं। सो दिस इज आवर पार्ट, कि हम किस प्रकार से कर्म करते हैं। और भगवत गीता हमें सिखाती है कि कैसे कर्म को अकर्म बनाया जाए, किस तरह से कर्म किया जाए ताकि हमारे बंधन का कारण न बने। कोई भी जो प्रामाणिक वैदिक शास्त्र है वो हमें ये 3 चीजें देता है, भगवत गीता भी देती है। आप अगर भगवत गीता में बने रहेंगे विशाखा प्रिया माता जी के साथ में, सो शी विल टेल यू हाउ भगवत गीता गिव्स यू द 3 स्टेप्स टू परफेक्शन। हमारा लाइफ का जो गोल है टू गेट बैक टू गॉड हेड, ये जो परफेक्शन ऑफ लाइफ है, ये हमें इन 3 स्टेप्स में मिलता है। और भगवत गीता हमें ये 3 चीज़ों का ज्ञान देती है। और कोई भी स्क्रिप्चर जो प्रामाणिक है, जो हमें स्पिरिचुअल नॉलेज देता है, उसका आधार ये 3 ज्ञान होते हैं। ये 3 ज्ञान अगर वो स्क्रिप्चर दे रहा है प्रामाणिक है, अन्यथा नहीं है। प्रभुपाद से पहला है संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान मतलब टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड द सोल, और गॉड एंड मी एज वी आर सोल। तो मेरे और भगवान के बीच में क्या कोई संबंध है? हमें किसी को कहना होता है ना कि आप हमारे घर आइएगा, तो हम किसी भी रास्ते चलते हुए व्यक्ति को तो नहीं बोलते ना कि ऊपर से बुला के भाई मेरे घर आना, ऐसे तो नहीं बोलते हम किसी को। कोई संबंध होता है तब हम उनसे कहते हैं कि आइएगा हमारे घर, आवजो, गुजराती में कहते हैं आवजो, आइएगा। सो हम इनवाइट उसे करते हैं जिसके साथ संबंध है। तो भगवान हमें 15 चैप्टर में हमें इनवाइट करते हैं, ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, तुम मेरे बच्चे हो, मेरा एक धाम है, मैं तुम्हें उसमें इनवाइट करता हूँ, बिकॉज वी हैव अ रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। और भगवान चाहते हैं कि हम घर लौट आएं। तो ये संबंध ज्ञान है, ये संबंध पहले से है, हम भूल गए हैं लेकिन भगवान को याद है। देन देयर इज प्रायोजन ज्ञान। व्हाट इज प्रायोजन ज्ञान? जीवन का अल्टीमेट गोल है हम भगवान का प्रेम, भगवान का धाम, भगवान के चरण प्राप्त करें। सो दिस इज द गूगल मैप। ये मेरी स्थिति है और ये मुझे प्राप्त करना है, यहाँ मैं खड़ा हूँ और यहाँ मुझे जाना है। और उसके बीच का जो रास्ता है, द प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड अभिधेय ज्ञान। तो ये गोल को प्राप्त करने के लिए इस जीव को क्या करना पड़ेगा, कौन सा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अभिधेय ज्ञान। और ये अभिधेय ज्ञान
संबंध ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान हमें भगवत गीता देता है, इसलिए भगवत गीता एक प्रामाणिक ग्रंथ है। हमें भगवत गीता को अवश्य समझने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। मैं ऐसे कहती हूँ लव ट्रायंगल। अगर इस चक्र में से छूटना है, जिसे कहते हैं 84 का फेरा, अगर मुझे इस चक्र में से छूटना है तो मुझे इस ट्रायंगल को समझना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड लव ट्रायंगल। ईश्वर, जीव एंड प्रकृति। समझना होगा कि मेरे में और भगवान में क्या संबंध है और मेरे में और प्रकृति में क्या संबंध है। मैं भगवान का अंश हूँ। भगवद गीता से जीवा इज पराशक्ति एंड प्रकृति इज अपराशक्ति। मतलब प्रकृति जो है वो निकृष्ट शक्ति है भगवान की, इंफीरियर एनर्जी है, एंड जीवा इज सुपीरियर एनर्जी। पर हम तो बिल्कुल उल्टा देखते हैं। प्रकृति ने जीव को अपने वश में कर रखा है क्योंकि जीव अपनी शक्ति भूल गया है। दिस इज वी नीड टू अंडरस्टैंड। इस ट्रायंगल को अगर हम समझ जाएंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा भगवत गीता को अप्लाई करना और अपनी स्थिति को समझना। सबसे बड़ा गड़बड़ ये है कि हम अपनी स्थिति को भूल गए हैं। प्रभुपाद सेज हमारा सबसे बड़ा अज्ञान ये है कि हम अपने आप को देह समझते हैं। सो जीव का ईश्वर के साथ और जीव का प्रकृति के साथ क्या संबंध है, ये हमें जानना है भगवत गीता से। देन ईश्वर का जीव के साथ और प्रकृति के साथ क्या संबंध है, और देन प्रकृति का ईश्वर के साथ और जीव के साथ क्या संबंध है। अगर हम इस लव ट्रायंगल को समझ जाएं तो हम एक बहुत बड़े सर्कल से बाहर आ सकते हैं, जिसे कहते हैं 84 का चक्कर। इस चक्कर से हम बाहर आ सकते हैं और भगवत गीता हमें इस लव ट्रायंगल को समझने में मदद करती है। हमें बताती है कि किसका किसके साथ क्या संबंध है। यदि रिश्तों की समझ ठीक ना होना तो हमारा व्यवहार गलत हो सकता है। जब नई नई बहू आती है घर में शादी करके, तो क्या होता है, जब नई नई बहू आती है ना तो उसे पता नहीं होता कि किसका स्वभाव कैसा है ना। हमारे परिवार में है, जैसे मैं शादी करके आई थी, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे इन लॉज दिल्ली में रहते थे। सो मैं शादी करके आई तो मुझे नहीं पता था कौन सी चाची से क्या बात करनी है, कौन सी मामी कैसी, बट यू नो माय हस्बैंड नोज एवरीबडी नाइसली कि किसका नेचर कैसा है, किसको कुछ बताना है, किसको कुछ नहीं बताना है। तो हम नए नए होते हैं और कुछ भी बोल देते हैं और फिर उसका बड़ा हंगामा हो जाता है, इज़न्ट इट? हंगामे होते होंगे, सबके लाइफ में हुए होंगे। सो हंगामा हो गया उसकी वजह से। देन प्रकाश, माय हस्बैंड प्रकाश प्रभु, he told me one day, he said, you know, I want to tell you something, कि देखो ऐसा है कि ये चाची के साथ बात नहीं करनी है, ये मामी के साथ तुम बोल सकती हो, इनको ये बात कभी नहीं बोलनी है, इनको तुम ये बात बोल सकती हो। सो ही टोल्ड मी द तत्व ज्ञान ऑफ द फैमिली फुल्ली so that I should not make the mistakes again. So similarly भगवत गीता tells you this love triangle of the family, ताकि आप किसी प्रकार की गलती न करें। अपनी स्थिति, भगवान की स्थिति और हम इस भौतिक जगत में कैसे फंस गए हैं, इसको यदि हम ठीक से समझ जाएंगे भगवत गीता के माध्यम से तो निकलना आसान होगा। और न केवल निकलना, भगवत गीता हमें सिखाती है आर्ट ऑफ लिविंग। इस भौतिक जगत में हम कैसे रहें, एंड आर्ट ऑफ लिविंग, इस भौतिक जगत से कैसे बाहर निकलें। दिस इज द ब्यूटी ऑफ भगवत गीता। प्रभुपाद सेज, आई डोंट टीच आर्ट ऑफ लिविंग, आई टीच आर्ट ऑफ डाइंग। हम भीष्म पितामह से सीखते हैं कैसे अपना शरीर त्यागना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम किस तरह से रहे। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें परेशान कर रही हूँ हमें, लेकिन यदि हम अंत समय में भगवान का स्मरण कर पाए तो सारा श्रम सार्थक है। नहीं तो अगर हमने बहुत अच्छे से जीवन जिया, किंग साइज, लेकिन अगर हम मर गए और फिर किसी ऐसी योनि में चले गए जिसे कहते हैं अधम योनिस, तो ये कैसा हो गया, लिव किंग साइज एंड डाई कैट साइज। और प्रभुपाद कहते हैं लिव किंग साइज एंड डाई bigger king size. This is the thing Prabhupada is teaching us. So आपने फर्स्ट चैप्टर किया है, हमने इस चैप्टर का नाम रखा था डाउट्स, क्योंकि सबको डाउट ही था, है ना। कृष्ण को डाउट था अर्जुन लड़ेगा कि नहीं, अर्जुन को डाउट था मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं, दुर्योधन को डाउट था मैं युद्ध तो कर रहा हूँ
लेकिन मैं जीतूंगा कि नहीं, और धृतराष्ट्र का डाउट तो एकदम पक्का था, पता नहीं मेरे अधर्मी बच्चे इस कुरुक्षेत्र में बचेंगे कि नहीं। सो एवरीबडी वॉज इन डाउट, तो हमने इसका नाम रख दिया डाउट, और ये उसका काइंड ऑफ याद करने के लिए इजी हो जाता है, इस तरह से लेआउट कर दिया है। बट वी आर ऑन चैप्टर 2, सो विल गो नाउ फास्टली टू द चैप्टर 2। ये अर्जुना के रीजंस थे, ये आपको याद कर लेने चाहिए, क्योंकि आपके पास भी इनसे अलग रीजंस नहीं होते हैं भक्ति में आने के लिए। हम सब के पास, हाँ, हम सब के पास बहुत सारे रीजंस है कि मैं क्यों भक्ति में नहीं आ सकता। एक्चुअली किसी ने मुझसे पूछा कि भगवत गीता सिंबॉलिक है या रियलिस्टिक है। मतलब सिंबॉलिक भी हो सकती है ना, जैसे 5 पांडवास, 5 इंद्रियां हैं, कौरवास आर द अनलिमिटेड डिजायर्स, मटेरियल डिजायर्स, एंड कृष्णा इज सोल हु इज फाइटिंग अगेंस्ट ऑल दीज थिंग। आई सेड मे बी यू कैन से इट इज सिंबॉलिक, बट इट इज ऑल्सो रियलिस्टिक। ऐसा नहीं है कि ये युद्ध कभी हुआ नहीं, ये सिंबॉलिक है, नहीं, ये युद्ध हुआ है। हाँ, और कुरुक्षेत्र उसका प्रमाण है। मैं कभी कुरुक्षेत्र नहीं गई, बट somebody was telling me कि उसकी मिट्टी आज भी लाल है, उसने इतना खून पिया है उस मिट्टी ने। 18 अक्षौहिणी सेना, कोई भी नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा। यू कैन वेल इमेजिन कितना रक्त उस मिट्टी ने पिया होगा। कभी अगर आपसे कोई कहे कि सिंबॉलिक है, नहीं नहीं, भगवत गीता सच में है, भगवान ने सच में कही है। आप इसे समझाने के लिए अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, पर एट द सेम टाइम भगवत गीता सच में है, रियलिटी में हुई है। इसे अगर जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक भगवत गीता से मिलने वाला लाभ हमें नहीं मिलता। प्रभुपाद कहते हैं कि लोग भगवत गीता को स्वीकार करते हैं, स्पीकर को स्वीकार नहीं करते। कृष्ण नहीं है, कृष्ण कोई महापुरुष है। किसी भी भगवान ने, जिसको हम सब सो कॉल्ड हम अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को, अलग अलग देवताओं को, यहाँ तक कि आजकल तो मनुष्यों को भी लोग भगवान मान लेते हैं। किसी ने ये नहीं कहा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पाप हर लूंगा, डरो मत, आई एम देयर फॉर यू, मैं हूं ना। ऐसा कोई नहीं कहता, सिर्फ कृष्ण ने कहा है। जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करते, तब तक भगवत गीता को पढ़ने के बाद भी उसका अर्थ हमारे हृदय में स्पष्ट नहीं होगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, ये तब संभव है जब हम उसे एज इट इज स्वीकार करें। आई एम श्योर ये आपने ऑलरेडी किया होगा इंट्रोडक्शन में। सो दीज आर द 5 रीजंस कृष्णा सेज मैं तो नहीं लड़ूंगा। और पहले अध्याय में भगवान कुछ नहीं बोले। मुझे लगता था कि भगवत गीता तो चैप्टर 2 से ही शुरू हो रही है, क्योंकि भगवान तो चैप्टर 2 में ही बोले हैं, तो वहीं से भगवत गीता शुरू है। लेकिन एक्चुअली भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जीव की स्थिति को बताता है, हमारी स्थिति को बताता है। आई वॉज टेलिंग माई डॉटर इज डूइंग साइकोलॉजी, सो मैं उसको बोल रही थी कि हर्षिता, तुझे पता है कि भगवत गीता में साइकोलॉजी के विषय में भी है। शी सेड अच्छा, कहाँ है मम्मा साइकोलॉजी के विषय में? ऐसे जो तू ये सिम्टम्स पढ़ रही है ना सिज़ोफ्रेनिया के, वो सारे के सारे सिम्टम्स अर्जुन शो कर रहा है। मेरी त्वचा जल रही है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, सब अमंगल दिखाई दे रहा है, मेरा गांडी मेरे हाथ से छूट रहा है। ये सिज़ोफ्रेनिया के लक्षण है, वो सब अर्जुन शो कर रहा है। एंड कृष्णा इज द काउंसलर हु इज काउंसलिंग हिम। 45 मिनट का सेशन, 1 सेशन, और उसका सारा भ्रम भगवान ने तोड़ दिया। और न केवल अर्जुन का भ्रम तोड़ दिया, 5000 साल से न जाने कितने लोगों के भ्रम आज भी टूट रहे हैं भगवत गीता को पढ़ने से। व्हाट अ वंडरफुल 45 मिनट्स का सेशन बाय द लॉर्ड। दिस इज व्हाट वी कैन से गॉड। मुझे किसी ने बोला कि मैं जब संस्कृत ग्रामर सीख रहा था माता जी, तो मैंने भगवत गीता को एज अ प्रैक्टिस के लिए मैंने भगवत गीता के श्लोक्स लिए, ताकि मैं ग्रामर को समझ सकूं। और मैं भक्त कैसे बना, उन्होंने मुझे बोला, मैं भक्त ऐसे बना कि जब मैंने भगवत गीता को संस्कृत की दृष्टि से पढ़ा, संस्कृत की दृष्टि से, तो मुझे लगा कि ऐसा कैसे संभव है कि एक व्यक्ति ने 45 मिनट बोला है और इसमें एक मात्रा की गलती नहीं। आपको आई एम नॉट अवेयर कि कितने लोगों को आजकल संस्कृत आती है, लेकिन संस्कृत बहुत क्लिष्ट लैंग्वेज है, डिफिकल्ट लैंग्वेज। कहाँ संधि होना चाहिए, कहाँ कौन सी मात्रा लगनी चाहिए, इट इज़ वेरी वेरी पर्टिकुलर।
एंड ही सेज कि मुझे एक गलती भी मिल जाती ना, तो मैं सिर्फ बाद में तो सिर्फ गलती ढूंढने के लिए मैं भगवत गीता का हर श्लोक समझता रहा. एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड कि एक गलती नहीं है उसमें. ग्रामेटिक मिस्टेक की बात कर रहे हैं हम. बाकी सब तो हम देख रहे हैं कि बाकी सब चीज़ें तो डेफिनेटली भगवत गीता में उत्कृष्ट हैं ही, पर ग्रामर की दृष्टि से भी भगवत गीता इस सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ. तो हम चैप्टर 2 आपने पढ़ा होगा, गीता का सार इसका नाम है. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली भगवान का जो जो मनोभाव था, जिसे कह सकते हैं, भगवान का जो प्लान था वो ये था कि चैप्टर 2 तक भगवत गीता खत्म कर देते हैं. तो इसीलिए सब चीज अर्जुन को समझाने के लिए भगवान ने, जो अर्जुन ने 5 रीजंस दिए थे नहीं फाइट करने के, उन 5 रीजंस का आंसर तो भगवान ने चैप्टर 2 में ही दे दिया कि अर्जुन ये तो तुम्हारे रीजंस बिल्कुल बेकार है. कंपैशन, जो तुम अपना करुणा दिखा रहे हो इन सब लोगों पे, मेरे अपने हैं, इतने सारे लोग मारे जाएंगे, बचेगा क्या दुनिया में? ऐसे लोगों को मार के राज करने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं. सो कृष्ण ने इन 5 कारणों का संतोषजनक उत्तर चैप्टर 2 में दे दिया. लेकिन उसके बाद जो भगवत गीता है ना, हालांकि अर्जुन भगवान का परम भक्त है, तो उसका बिविल्डर्ड होना ये तो हजम होने वाली बात नहीं है. हमारे लिए भगवान ने इस आयोजन को रखा. भगवान कहेंगे भी, 4th चैप्टर आप पहुंचेंगे तो भगवान कहेंगे ही कि ये परंपरा नष्ट हो गई है, इसलिए मैं इसको तुम्हारे माध्यम से वापस स्टैब्लिश करना चाहता हूँ अर्जुन. सो योगो नष्ट परम तप, ये योग नष्ट हो गया था एवं परंपरा प्राप्त, लेकिन मैं उसको वापस तुम्हारे माध्यम से स्टैब्लिश करना चाहता हूँ. लेकिन चैप्टर 2 के बाद अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा वास्तव में अर्जुन जो प्रश्न कर रहा है वो अपने लिए नहीं कर रहा, क्योंकि उसके लिए सब कुछ क्लियर है. ये भगवत गीता हमारे लिए है. हाँ, भगवत गीता के 700 वर्ष हमारे जीवन के 700 मणियाँ हैं, जिनको हमें एक एक करके काउंट करना है. somebody asked me कि भगवान ने इतनी बड़ी भगवत गीता दी, इसका सार क्या है? What is सार of भगवत गीता? Anybody wants to share something? Wants to say something कि क्या सार क्या होगा भगवत गीता का? प्रभुपाद ने तो खैर हमें बताया ही है सब कुछ. What is सार of भगवत गीता? The शिरोमणि वर्ष, the परिभाषा सूत्र. हर बुक का ना एक परिभाषा सूत्र होता है, शिरोमणि वर्ष होता है, और उस वर्ष को, उस श्लोका को बेस बनाकर जब हम बाकी वर्सेस को देखते हैं ना, तो एक्चुअली हम पूरे जो बुक है उसको अलग दृष्टि से देख पाते हैं. मान लीजिए चश्मा है, परिभाषा सूत्र को कहा जाता है चश्मा. उस चश्मे से हम सब कुछ देते हैं. आप आजकल तो आई एम श्योर सबने 10D, 7D, 8D देखा होगा. तो जब हम देखने जाते हैं ना, तो हमें एक चश्मा मिलता है. अगर आप उस चश्मे के बिना देखेंगे तो नथिंग इज स्पेशल, पर जैसे आप वो चश्मा लगाते हैं, थिंग्स बिकम 3D. आपको लगता है यू आर एंटरिंग इनटू इट. सो सिमिलरली यदि हम ये समझ जाएं कि भगवत गीता का परिभाषा सूत्र क्या है, तो उस चश्मे से जब हम एंटर करते हैं तो हम वास्तव में भगवत गीता में एंटर कर सकते हैं. यस, इज इट विनी? Who can tell me what is the Paribhasha Sutra of Bhagavad Gita? Vinny, wait a minute. You don't speak. Is it Vinny from Surat? Yes. Anybody wants to tell me what is the Paribhasha Sutra of Bhagavad Gita? Hare Krishna. Yes, Dr. Manish Nigam, you can tell me. Yes, sir. Good evening, ma'am. According to me, भगवत गीता का जो सूत्र है वो है कर्म कर पर फल की चिंता ना कर, और leave the result and destiny to Lord Krishna. Very nice, so nice. Anybody else wants to try? Thank you, Mr. Manish. Yes, anybody else wants to try that? हरे कृष्णा माता जी. स्वाति. Yes, Swati. माता जी, हम लोग एक जेल में हैं और हमें वापस कृष्ण जी के पास
गोलोक धाम में जाना है ये सब दुखों से दूर होके, तो उनपे हमें जो वो कह रहे हैं उस बात पे पूरा भरोसा रखना है और उसको मानना है। Okay, so Krishna, whatever Krishna is saying, चुपचाप मान लो. हाँ, to trust on it. Yes, okay. So trust on the Lord. Anybody else? Yes. Yes, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. According to me, Krishna is saying, follow my instructions, surrender to me, and Yes. I am there to take care of your things, and whatever you need, I'll provide you. Okay. Yogakshemam Vahamyaham, right? Yes. Very nice, Neelam ji. Nice. Anybody else wants to try? Just surrender to him. Okay, Ishita, bingo, surrender unto me. Krishna says, what Prabhupada has said, I'm telling you that. Prabhupada says, the Paribhasha Sutra of Bhagavad Gita is सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. Just surrender unto me, I will take care of everything. जब हम इस चश्मे से भगवत गीता को देखेंगे, भगवत गीता को समझना सहज हो जाएगा. आप भगवत गीता में एंटर कर सकते हैं, हर जगह देख सकते हैं कि कैसे भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हमारी, अगर हम उनके शरणागत होते हैं. और शरणागति इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक अर्जुन शरणागत नहीं था, भगवान ने उसको भी कुछ नहीं बोला. फर्स्ट चैप्टर में कृष्णा इज ओनली लिसनिंग. लेकिन जब अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, प्लीज बी माई गुरु, एक्सेप्ट मी एज डिसाइपल. डिसाइपल मतलब मुझे अनुशासित करो, डिसिप्लिन मी, माई माइंड इज आउट ऑफ डिसिप्लिन, प्लीज डिसिप्लिन माई माइंड. जब तक उसने शरणागति नहीं ली, भगवान बोले ही नहीं. It is important to understand that शरणागति is very very important. So chapter 2 गीता का सार, और इस चैप्टर में लगभग पूरी गीता का पूरा सार भगवान ने इस चैप्टर में दे दिया है. इसका नाम दिया है हमने GITA गीता. इस तरह से आपको याद करना, उसका लेआउट इजी रहेगा. G is for Guru. Who is playing Guru in chapter 2? Krishna is playing Guru. अब तक क्या थे अर्जुन और कृष्ण? मित्र थे, सखास, वेरी वेरी डियर सखास. तो सखास में कैसे होता है ना, एक दूसरे को हाथ भी मार लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं. कृष्ण ने बोल दिया, अरे तुम्हें पता नहीं अर्जुन, तुम मेरी शक्ति से काम कर रहे हो. अर्जुन बोलेगा, क्या कृष्णा, कुछ भी तुम्हारी शक्ति से, मतलब मैं जो इतनी मेहनत की है, मैंने इतनी सारी तपस्याएं की, इंद्र से अस्त्र हासिल किए, शिव जी को संतुष्ट करके उनसे अस्त्र हासिल किए, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, ये मेरी वजह से हुआ ना, आई डिड दैट. सो दोस्तों में एक दूसरे को खींचना और एक दूसरे को नीचे दिखाना, इट इज काइंड ऑफ एक्सचेंज, यू नो, लविंग एक्सचेंज. एक दूसरे के कान भी खींचते हैं दोस्त. लेकिन जब हम गुरु और शिष्य की बात करते हैं, तो शिष्य इज ऑलवेज रिस्पेक्टफुल टू गुरु. हमेशा शिष्यता को स्वीकार करता है, इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है, डिसिप्लिन होता है गुरु के सामने. तो इस समय पे अर्जुन ने कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया है. चैप्टर का जो 1 to 10 वर्सेस हैं, दैट शोज हाउ अर्जुना इज टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा एंड ही इज मेकिंग हिम गुरु. दोनों का पोजीशन चेंज है. जब युद्ध में आए थे तो अर्जुन ऊपर बैठा था, कृष्ण नीचे सारथी की कुर्सी पे थे, जो कि नीचे थी. लेकिन जब गुरु बन गए हैं भगवान, तो पोजीशन चेंज है. अर्जुन अपने स्थान से उठ के नीचे आ रहा है और कृष्ण अपने स्थान से उठ के ऊपर आए हैं. अर्जुन ने भगवान की शिष्यता को स्वीकार किया है. देन कम्स ID, जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज I फॉर ID. हमारी आइडेंटिटी क्या है? भगवान अर्जुन को सबसे पहले ये समझा रहे हैं कि अर्जुन, जब तक तुम देहात्म बुद्धि से बाहर नहीं आओगे, तब तक तुम एक्चुअली कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर सकते. युद्ध तो छोड़ दो, कोई भी कार्य. आप सोचिए, आप अपने घर में हैं, घर बहुत बिखरा हुआ है, अभी अभी आपने एक नए घर में शिफ्ट किया है, शाम के 7 साढ़े 7 बजे हैं, आपके घर पूरा सामान से भरा हुआ है और अचानक लाइट चली जाती है. आपके घर की नहीं, पूरे एरिया की. एकदम डार्क पिच है, आपको कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि पूरा घर बिखरा हुआ है, घर नया है, आपको कुछ पता नहीं है कि कहाँ पे मेरा सामान रखा है, दिया सलाई कहाँ रखी है, वेयर इज द कैंडल, वेयर इज द मैच बॉक्स, आपको कुछ भी नहीं पता.
ऐसे में अगर आप ज्यादा दौड़ेंगे इधर उधर तो डेफिनेटली चोट लग सकती है, क्योंकि सामान भी बिखरा है, कौन सी शार्प चीज है, कौन सा क्या सामान पड़ा है, आपको कुछ भी नहीं पता. So, being in bodily consciousness is like being in ignorance and darkness. ऐसे में आप जिससे भी रिश्ता निभाएंगे, जिससे भी आप डील करेंगे, गड़बड़ ही करेंगे, क्योंकि हम डार्कनेस में हैं. शंकराचार्य कहते हैं कि हम रस्सी को सांप समझते हैं और सांप को रस्सी, दोनों में ही नुकसान है. अगर हम सांप को रस्सी समझते हैं तो सांप हमें काट सकता है, और रस्सी को सांप समझते हैं तो हम अननेसेसरी डरते रहते हैं. और यही हमारे साथ होता है कि नहीं? हम छोटी छोटी चीज़ों से घबराते रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं, हमेशा एक भय में रहते हैं, क्योंकि हम रस्सी को सांप समझ रहे हैं. और जो वास्तविक सांप है, जो हमारी तरफ बढ़ रहा है मृत्यु के रूप में, हाँ, इस 84 के चक्र के रूप में, उसे तो हम देख ही नहीं रहे. हम तो उसकी तरफ नजरअंदाज हो रहे हैं. सो दिस इज हाउ कृष्णा इज टेलिंग अर्जुना, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पोजीशन एज सोल, योर आइडेंटिटी एज सोल. और इसी के आपने इसमें 11 वर्ड्स तक किया है. ये अर्जुना के आर्ग्यूमेंट्स जो भगवान ने तोड़े हैं इस चैप्टर में, और ये आपने किया है 11 तक, जहाँ भगवान कहते हैं अर्जुन से, गताशूनश्च नानु शोचंति पंडिता. इतने बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट तुम मुझे दे रहे हो अर्जुना, लेकिन समझ रहे हो तुम बहुत बड़े पंडित हो, पर तुम पंडित नहीं हो. यू आर नॉट बिहेविंग लाइक पंडिता. क्यों? अर्जुन पूछे भगवान से, क्यों कृष्णा, व्हाई यू सेइंग लाइक दैट, कि आई एम नॉट डूइंग द प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स और आई एम नॉट पंडित. कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो नदी में और तुम्हें तैरना आता हो तो तुम क्या करोगे? अर्जुन, मैं तो जाऊंगा, भाग के उसको बचाऊंगा. हाँ, तुम नदी में उतरे, उस व्यक्ति के हाथ को पकड़ा और खींच के जब बाहर आए तो पता चला कि व्यक्ति तो अभी भी वही है, तुम उसका कुर्ता बाहर ले आए हो. इज इट स्मार्ट और इज इट स्टूपिड? इज इट पंडित और इट इज मूर्खा? अर्जुना सेज, हाउ कैन यू से दैट कृष्णा, आई एम नॉट दैट स्टूपिड. अर्जुना सेज, कृष्णा सेज, यस, दैट व्हाट यू आर प्लेइंग. तुम बात कर रहे हो कंपैशन की, पर तुम्हारा कंपैशन शरीरों के लिए है, आत्माओं के लिए नहीं है. हाँ, कंपैशनेट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सी, तुम्हारा कंपैशन किसके लिए है? तुम्हारा कंपैशन आत्मा के लिए नहीं है, तुम्हारा कंपैशन शरीर के लिए है. दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट. शरीर के लिए जब हम कंपैशन रखते हैं तो हम शरीर के लिए काम करते हैं, और ये शरीर तो बचने वाला है ही नहीं, इसको तो मरना ही है. अगर तुम नहीं मारोगे तो क्या ये मरेंगे नहीं? 2.13 में भगवान कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्तिम. ये देह को तो खत्म होना ही है अर्जुन. तो अर्जुन कहता है, भगवान अगर इस देह को खत्म होना है, चले जाएंगे ये देह में, तो ये तो नहीं रहेंगे ना जो सामने हैं, जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, भीष्म, द्रोणा, कृपाचार्य, इन सब से मैं प्रेम करता हूँ, तो इनका देह चला जाएगा, मुझे तो इनकी देह के माध्यम से ही रेसिप्रिकेट हो रहा है. कृष्णा से, अच्छा अर्जुन, बड़े पंडित हो तुम. अगर देह के जाने का दुख कर रहे हो तो तुम्हारी बचपन की देह कहाँ है? क्या तुम बदले हो या तुम्हारा देह बदला है? जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा देह अलग था. हम देखते हैं ना, जब हम छोटे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने टीन एज की फोटो देखते हैं और फिर हम आज की फोटो देखते हैं, और कोई कोई देख के बोलते हैं, अरे तू पहचान में ही नहीं आ रही, कितनी पतली है इसमें, ऐसा लगता है बिजली गिरे मेरे ऊपर में और अभी जमीन में चली जाऊं. अब तुम कितनी मोटी हो गई हो, तुम तो इसमें कितनी पतली हो. हाँ, इट्स लाइक ऐसा लगता है ये हम है ही नहीं, ये तो कोई और है, दिस इज नॉट मी, समवन एल्स. हाँ, तो कृष्ण कहते, तब क्या करते हो तुम? तुम्हारा देह तो तब भी चेंज हो गया. बचपन से लेके आज तक जो तुम्हारा देह है वो चेंज हुआ कि नहीं? हाँ, तो जब उसके लिए शोक नहीं है तो अल्टीमेट जब देह चेंज हो रहा है उसके लिए शोक क्यों? प्रभुपाद लिखते हैं परपोर्ट में कि हर लिविंग एंटिटी, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो व्यक्ति हो, वो इन 6 चेंजेस से गुजरता है. बर्थ, then the body grows, then body stays for some time, then it reproduce young ones like himself or herself, then it starts decaying,
एंड अल्टीमेटली इट डाइज। इन 6 एक्सचेंजेस से हमारा बॉडी गुजरता है। और इसके लिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि जो धीर होते हैं ना, धीर व्यक्ति, वो शोक नहीं करते इसके लिए। तो जो मरने वाले हैं उनके लिए शोक मत करो अर्जुन, क्योंकि उनका देह मर रहा है, वो नहीं मर रहे हैं। अर्जुन कहता है कि प्रभु अगर इनका देह मर जाएगा तो मुझे बहुत दुख होगा। कृष्ण कहते क्यों दुख करना चाहिए, देखो उनका शरीर ऑलरेडी मृत्यु के कगार पे है। भीष्म पितामह बूढ़े हो गए हैं, द्रोणाचार्य बूढ़े हो गए हैं, अगर ये मर जाएंगी तो उन्हें एक फ्रेश नई देह मिलेगी। इस चक्र में उनको एक नई देह मिलेगी। तो अर्जुन बोलता है फिर इस तरह की एक्सचेंजेस के बाद तो उनको एक अच्छा फ्रेश नया देह मिलेगा, तो फिर तुम्हें उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन कहता है कि लेकिन मेरा अटैचमेंट है कृष्णा उनके साथ, उनकी इस देह के साथ। और तो भगवान कहते हैं अर्जुन से अगर उस तुम्हारा अटैचमेंट है उनकी देह के साथ, अगर तुम उन्हें नहीं मारना चाहते हो तो फिर ये कभी मरेंगे नहीं ना, हमेशा के लिए अमर है। तुम तो मारोगी नहीं तो फिर कभी मरेंगे ही नहीं। क्या ये कभी मरेंगे या नहीं मरेंगे? तुम नहीं भी मारोगे तो भी उनको तो मरना ही है। और अगर युद्ध भूमि पे मरते हैं तो दैट इज द ग्लोरियस डेथ फॉर द क्षत्रिया। देन अर्जुन उनसे कहता है भगवान से कि प्रभु मैं उनके इस विछोह को, सेपरेशन को मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम भौतिक जगत में हो, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ माया। और यहाँ पे एक नियम लागू होता है जो एक पे नहीं सब पे लागू होता है। किस पे? जो अमीर है उस पे भी होता है, जो गरीब है उस पे भी होता है, जो स्वस्थ है, बीमार है, बच्चा है, बूढ़ा है, सब पे लागू होता है। और वो नियम है टॉलरेट का नियम। टॉलरेट। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगमो आपायनो अनित्यम तांतितिक्षस्व भारत। अर्जुन जब हम इस भौतिक जगत में होते हैं ना तो हमें सहन करना होता है। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सहन करना है, क्योंकि आप दुखालय में आगे आप जाएंगे। भगवान इस भौतिक जगत के वर्णन में बताएंगे कि इसका नाम रखा है मैंने दुखालयम। तो दुख तो आएंगे, आपको सहन करने होंगे। तो किस किस तरह के दुखों को हमें सहन करना है? कृष्णा सेज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू टॉलरेट इज द अर्जेस ऑफ आवर विकारास। हमारे मन में 6 प्रकार के विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर्य। हाउ मच टाइम डू वी हैव? वी हैव जस्ट 5, it's 4 to 5, right? Yes, it is, but you can take 10 minutes more. Okay, thank you. And I'll try. we can, yeah, you can take time and then we can take questions also from them. Okay, thank you so much. Thank you. So the first Krishna says that you have to tolerate the urges of your vikaras. हाँ, हृदय में काम है। काम का मतलब है कि मुझे सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। हाँ, जब हम वृंदावन घूमने जाते हैं ना तो वृंदावन में बंदर बहुत है। आप सब लोग गए होंगे, आप तो दिल्ली में रहते हैं, यू आर सो फॉर्चुनेट पीपल। 2 घंटे में वृंदावन चले जाते हैं जब मन करे, टिकट की भी जरूरत नहीं है। सो जब आप वहाँ जाते हैं ना, आप सिंघाड़े लीजिए, अमरूद लीजिए, कुछ भी लीजिए, एक थैली में लेके जब आप जा रहे होते तो बंदर को लगता है इसने मेरे लिए खरीदे, दिस इज माई प्रॉपर्टी। और आपसे पूछता नहीं है, परमिशन नहीं लेता, वो बस कूदता है और अपना सामान लेके चला जाता है। और क्योंकि हम नए हैं, हम वृंदावन में नहीं रहते, जो वृंदावन के लोग हैं उनसे बंदर नहीं उलझते, वो भी अपने शिकार को अच्छे से पहचानते। ठेला पूरा भरा हुआ है सिंघाड़े से, वो वहां पे जाके हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन जैसे ही आपकी थैली में आ गए वो उसके हो गए और वो तुरंत झपट लेता है। सो कामी हृदय बंदर की तरह होता है, वो इस चीज में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि कौन सी चीज मेरी है, मेरे अधिकार की है कि नहीं है। हर वस्तु को अपने अधिकार की समझता है। रावण को लगता है सीता मेरी है, आई कैन एंजॉय सीता। सो ये काम को सहन करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये काम हमें नर्क में ले जाएगा, हमारा पतन कराएगा। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं अर्जुन इस भौतिक जगत में आए हो तो एक प्रिंसिपल लागू होता है, टॉलरेट प्रिंसिपल। और जो जितना अच्छे से इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है उतना अच्छा व्यक्ति बनता है। सो यू नीड टू टॉलरेट द अर्ज ऑफ विकारास, काम,
क्रोध, इतना क्रोध आता है, यू नो, वी हैव वन स्टोरी ऑन एवरी अर्ज बट वी हैव लेस टाइम. सो काम के ऊपर मुझे एक बहुत अच्छा किस्सा याद आया. एक व्यक्ति अपने दोस्त से मिलने गया, उसका जो फ्रेंड था वो पागलों का डॉक्टर था, उसका अपना एक क्लिनिक था, हॉस्पिटल था. तो उस व्यक्ति को बड़ा मन किया, उसने अपने दोस्त को बोला, उसके दोस्त ने बोला तुम्हें पता है बड़े इंटरेस्टिंग केस आते हैं यहाँ पे. तो बोला हैं बड़े इंटरेस्टिंग केस आते हैं. तो उसने बोला कि मुझे भी मिलना है कुछ लोगों से जो थोड़े इंटरेस्टिंग हो. तो उनको लेके आया, अपने दोस्त के हॉस्पिटल में आया. उसने बोला देखो वो आदमी ऊपर पंखे के ऊपर चढ़ा हुआ है और चिल्ला रहा है देवी देवी देवी. ही सेड कि क्यों चिल्ला रहा है? बोला इसको एक लड़की से बहुत प्रेम था और उस लड़की ने इसको धोखा दे दिया प्रेम में, तो ये पागल हो गया, उसी का नाम चिल्लाता रहता है पूरा दिन. अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद एक और दूसरे कमरे में देखा, वो व्यक्ति भी पंखे पे चढ़ा हुआ था, चिल्ला रहा था देवी देवी. तो बोले ये क्यों चिल्ला रहे? तो बोले देवी इसके साथ भाग गई थी. दोनों पागल हो गए. हाँ, सो लस्ट हैज सच अ नेचर दैट हम डिस्क्रिमिनेट करना भूल जाते हैं, गलत है कि सही है हम भूल जाते हैं, हमें एंजॉय करना है. क्रोध के उबाल को हमें कंट्रोल करना, टॉलरेट करना है. हमें छोटी बात पे गुस्सा आता है, बड़ी बात पे गुस्सा आता है, हमें कंट्रोल करना, टॉलरेट करना आना चाहिए. छोटों का गुस्सा बड़े टॉलरेट करते हैं, है ना, ऐसा बोला जाता है. तो जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं वो बड़े हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है वो छोटे हैं. तो उनके क्रोध को हमें सहन करना चाहिए. लोभ, देयर इज नो एंड, जमा करने के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन हमें इसको टॉलरेट करना चाहिए. जितना आवश्यक हो उतना रखेंगे, जितना आवश्यक नहीं हो नहीं रखेंगे. एंड ऑफ कोर्स मोह, मद, मत्सर्य. हाँ, उसके बाद भगवान कहते हैं द्वंद्व सहिष्णुता. जो हमारे जीवन में द्वंद्व हैं, भगवान इस श्लोक में भी कह रहे हैं सुख दुख आगम आपायनो अनित्यम तान तितिक्षस्व भारत. सुख और दुख दोनों को सहन करना है. पता है क्यों? क्योंकि जब हमारे जीवन में सुख आता है ना, हम दूसरों को कम समझने लगते हैं. एक वो व्यक्ति जो ठीक तरह से लोगों के साथ पेश आ रहा है, सब कुछ होने के बाद भी, इसका मतलब है कि वो सुख को पचा पा रहा है, वो सम्मान को पचा पा रहा है, वो पैसे को पचा पा रहा है. नहीं तो लोग पचा नहीं सकते. जब हमें बहुत सक्सेस, बहुत पैसा, बहुत सुख मिल जाता है, हमारा बिहेवियर चेंज होता है, इतना अहंकार आ जाता है, इतना एटीट्यूड हो जाता है कि हम लोगों से ठीक बिहेव नहीं करते. इसलिए भगवान कहते हैं सुख को भी सहन करना है, लाभ को भी सहन करना है, मान और अपमान दोनों को सहन करना है, दोनों को सहन करना आना चाहिए. देन कृष्णा सेज परमत सहिष्णुता. कई बार हम दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन नहीं ले पाते, उसको भी सहन करना. आप भक्ति में नए नए आए हैं अगर, तो बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे ये उम्र नहीं है भक्ति में आने की, तुम्हें अभी ये सब करना है. दिस इज नॉट द टाइम टू एक्चुअली बी इन भक्ति. तुम्हारे पास बहुत समय है अभी बुढ़ापे में भक्ति करना. तो सबके अपने अपने मत हैं, उनको भी सहन करना आना चाहिए. देन कृष्णा सेज पर उत्कर्ष सहिष्णुता. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं है. हम जब दूसरों को फ्लरिश होके देखते हैं, सक्सेसफुल देखते हैं, तो हमारे अंदर होपलेसनेस आ जाती है. हमें लगता है मैं कहाँ खड़ा हूँ, आई एम डूइंग नथिंग, मेरे पास तो कुछ नहीं है. हमारा हृदय एनवी में जलने लगता है. और यदि हम किसी को देख के प्रसन्न हो रहे हैं, तो महाप्रभु कहते हैं दिस इज द पैरामीटर टू सी दैट यू आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली. क्योंकि एक स्पिरिचुअलिस्ट ही दूसरों को ग्रो करते हुए जब देखता है तो खुश होता है. मटीरियल पीपल दे नेवर बिकम हैप्पी. प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु से एक भक्त प्रार्थना करते हैं कि हे महाप्रभु, मेरा हृदय जल रहा है ईर्ष्या की अग्नि में, और उसके जो बॉयल्स है ना वो मेरी स्किन पे आ रहे हैं, मेरी स्किन जल रही है, बड़े बड़े बॉयल्स हो रहे हैं मेरी स्किन पे. आप तो अच्छे डॉक्टर हैं, मुझे हरिनाम का मेडिसिन दे के मुझे स्वस्थ कीजिए. सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड. और अगर हम ये सब समझ लेते हैं, अगर हम टॉलरेट करना सीख जाते हैं, एक गुड न्यूज़ ये है 2.14 वर्ष में भगवान कहते हैं अनित्यम. जैसे सुख नित्य नहीं है, दुख भी नित्य नहीं है.
जैसे मान नित्य नहीं है, अपमान भी नित्य नहीं, सब अनित्य है इस संसार में, कुछ भी रहने नहीं वाला। ये गुड न्यूज है, क्योंकि अपमान, दुख, शोक ये भी अनित्य हैं, ये भी समय के लिए, ज्यादा समय के लिए रहेंगे नहीं, चले जाएंगे। तो जब चले जाएंगे उस समय तक अगर हम उनको सहन कर लेते हैं तो हम विजयी हो जाते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है, प्रभुपाद इसमें एग्जाम्पल देते हैं, इतनी तेज गर्मी होती है लेकिन स्त्री अपने घर में जाके खाना बनाती है इतनी तेज गर्मी में भी, और अगर कितनी भी ठंड हो व्यक्ति ठंडे पानी से नहा के भगवान की पूजा करता है। तो यदि हम सहन करना सीख जाएं थोड़े से समय के लिए, अगर गुस्सा है बहुत तेज और अगर हम 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट कुछ ना बोले, उसको सहन कर लें, तो उसका फल क्या मिलेगा। 2.15 में भगवान उसका फल बताते हैं, कहते हैं सह अमृतवाय कल्पते, ऐसा व्यक्ति अमृत को प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अमृत प्राप्त होता है। न केवल रिश्ते मधुर बनते हैं, आपका हृदय मधुर बन जाता है, बल्कि मृत्यु के बाद, भगवान कहते हैं मृत्यु के बाद मुक्ति का अधिकारी बनता है वो व्यक्ति। सो दिस इज हाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस। ये NOI से प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस है कि कैसे यदि हम सहन कर पाते हैं तो क्या होता है। रूपा गोस्वामी सेज once becomes Goswami and one becomes Dhira, can accept disciples all over the world. Varcho vegam manasa krodha vegam jivha vegam udar upastha vegam etan vishayan yo vishayika dhira sarvam apimam prithvim sashishyar. It is important to understand the principle of tolerance. So इसके बाद भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि कैसे तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। इस वर्ष में 2.14 में 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भगवान ने अर्जुन को 2 बार नाम से पुकारा, एक बार कहा कौन्तेय और दूसरी बार कहा भारत। 2 बार नाम लेके बुलाया है, और जहां भी भगवान अर्जुन को जिस भी नाम से बुलाते हैं ना, उसका बहुत सिग्निफिकेंस है। क्योंकि ये जो व्यक्ति जो बातें कर रहे हैं, 2 व्यक्ति अर्जुन और कृष्ण, ये दोनों सुपर इंटेलिजेंट है फर्स्ट। दूसरा, इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। जब 2 व्यक्तियों का बहुत गहरा संबंध होता है ना, तो इशारों में भी बात समझ जाते हैं। भीड़ में बैठे होते हैं, एक इशारा कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि उसको क्या बोलना है। पूरे जो लोग आसपास बैठे हैं उनमें से किसी को समझ नहीं आता, लेकिन ये 2 समझ जाते हैं। तो भगवान इशारे से अर्जुन को कुछ कह रहे हैं। अर्जुन को कह रहे हैं कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, तुम्हारी माँ ने मुझसे कह के भेजा है अर्जुन से कहना कि जिस दिन के लिए शत्राणी अपने पुत्रों को पैदा करती है वो दिन आ गया है। अगर तुम आज युद्ध से पीठ दिखाओगे तो तुम्हारी माता को शर्मिंदा करोगे। तुम्हारी माँ को तुमसे कितनी एक्सपेक्टेशन है, उसने कितने दुख देखे अपने जीवन में। और कहते हैं अर्जुन को भारत। भारत मतलब भरतवंशी, भरतवंशी मतलब राजाओं के तुम साम्राज्य में आते हो, तुम उनके वंश में आते हो, भारत के वंश में आते हो। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम पाप का नाश करो, धर्म की स्थापना में मेरी सहायता करो और एक अच्छा राज्य स्थापित करो। इस तरह भगवान अर्जुन को इनकरेज करते हैं अपने माता और पिता के नाम से, अपने वंश के नाम पे, कि कितना आवश्यक है कि तुम अपने पैटी थिंग्स को सहन करते हुए हायर पर्पस के लिए कुछ तपस्या करो, हायर पर्पस के लिए अपने आप को तैयार करो। सो भगवान ने जो अर्जुन को बताया डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, ये 30th वर्ष तक जाएगा और अलग अलग एंगल से भगवान अर्जुन को समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे भौतिक और स्पिरिट मतलब जड़ और चैतन्य वस्तु में क्या अंतर है। तुम जो अपने आप को समझ रहे हो शरीर, तुम शरीर नहीं हो, तुम जड़ नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो आत्मा से संबंधित कार्यों को करना आवश्यक है, आत्मा की दृष्टि से सबको देखना आवश्यक है। एंड दीज आर द डिफरेंसेस व्हिच वी हैव सॉर्ट आउट सम ऑफ देम। ओके, ये मैं बताना भूल जाऊंगी। अष्ट सखी एक स्पिरिचुअल बुटीक है जो सब तरह के फैंस और भगवान के डीटी से रिलेटेड सारी सामग्री रखता है। अगर आपको किसी को भी किसी तरह का कुछ सामान चाहिए तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। There are 2 numbers, you can contact them if anybody is interested.
Okay, so now we can take question if you have anything. I'm sorry if I was not understandable. If So if anybody has questions, they may unmute themselves and ask. It was such a great presentation, Janvi Priya, that everybody is stunned, and it will take them, I think, a few seconds to come out of the. well, it's like, you know, if you understand something, then you can ask something. I'm not sure. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। Yes, Mataji. Hare Krishna. माता जी, आपने शिरोमणि सूत्र और परिभाषा सूत्र जो है सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो ये दोनों भी सेम ही है? या दो अलग वर्ड्स हैं पर एक ही वर्ड्स के हैं। शिरोमणि वर्ड्स मतलब जो इस पूरे भगवत गीता में जो सबसे टॉप वर्ड्स है, और परिभाषा सूत्र मतलब जिस वर्ड्स के माध्यम से हम इस पूरे भगवत गीता को परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि यही गोल है भगवत गीता का अल्टीमेटली, कि हम भगवान की शरणागति ले। सो दिस इज सेम। जैसे हम अगर श्रीमद् भागवतम को देखें तो उनको गोस्वामी कहते हैं श्रीमद् भागवतम का परिभाषा सूत्र कौन सा है? श्रीमद् भागवतम का परिभाषा सूत्र है एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे। अगर हम इस चश्मे से भागवतम को पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर होता जाएगा, लेकिन अगर हम वहां पे यही सोचते रहेंगे कृष्ण भगवान है कि नहीं है, तो इसका मतलब है आपको भागवतम समझ ही नहीं आएगी। आप वापस भगवत गीता में जाइए, उसको ठीक से समझिए, फिर एंटर कीजिए भागवतम में। यस, थैंक यू माता जी, वन मोर, हरे कृष्णा, वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क। Yes. मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय जो 2.14 वर्स है, उसमें आपने जो अर्जेस बताए हैं विकारास, उसमें क्रोध जो बताया है एंगर, उसके सामने शायद अपने एकनाथ, ज्ञानेश्वर, नरसिम्हा मेहता ये जो नाम लिखे हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखे थे? एक्चुअली यू नो मुझे लग रहा था कि हम लेट हो गए, इसलिए मैंने वो स्टोरी नहीं ली। क्रोध को किस प्रकार उन्होंने सहन किया और किस प्रकार उन्होंने सहन करते हुए पॉजिटिवली इसको अपने कृष्ण कॉन्शियसनेस में यूटिलाइज किया। ऐसा लिखा है कि ये तीनों संत एक बार मिले आपस में, ये सब आपस में मिले तो एक दूसरे से वो आपस में बात कर रहे थे। तो नरसिंह मेहता ने कहा कि मेरी पत्नी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो मुझे इतना डांटती है, इतना गुस्सा करती है, इतना गुस्सा करती है कि मेरा कभी संसार में उसकी वजह से मोह लगा ही नहीं। मतलब क्योंकि वो मुझे कभी प्रेम ही नहीं की तो मुझे उससे प्रेम ही नहीं हुआ। वो मुझे हमेशा डांटती रहती है, गुस्सा करती है, चिल्लाती है, तो मुझे भगवान की कृपा से कभी संसार में मेरा मोह नहीं लगा। एकनाथ कहते हैं कि मेरी पत्नी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, समय से चली गई संसार से मर गई, तो इसलिए मैं भगवान की भक्ति में लग गया। सब ज्ञानेश्वर को देखने लगे कि अब ये क्या कहेगा। उसने बोला मेरी पत्नी मुझे इतना सपोर्ट करती है, इतना प्रेम करती है कि उसकी वजह से मैं भक्ति में आया। सो भक्ति के लिए एक्सटर्नल कंडीशंस आर नॉट एनी टाइप ऑफ एंड्योरेंस। अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको प्रेम करता है, गुस्सा करता है नहीं है, आप हर अवस्था में भक्ति कर सकते हैं। तो अगर आपके जीवन में बहुत हर तरह से विरोध है आपके जीवन में, तो आप ये नहीं कह सकते घर वाले नहीं पसंद करते मैं नहीं आ सकती, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई क्रोध करता है तो उसे सहन करते हुए यदि हम भक्ति करते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं मुक्ति पदे सदाए भाग, जो इन चीजों को सहन करता है, भगवान भागवतम में कहते हैं कि जो सहन करता है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वर्ड्स का फर्स्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, लास्ट वर्ड याद है, मुक्ति पदे सदाए भाग। जो इस तरह से सहन करता है ना, तो मुझे इतना प्रिय हो जाता है कि अरे मेरे लिए इतना सहन कर रहा है, तो भगवान उसे उस चीज का अधिकारी बनाते हैं जिस चीज की वो खोज कर रहा है। जैसे एक बच्चा है, उसे अपने पिताजी के जायदाद में हिस्सा लेने के लिए क्या करना है? सिर्फ जिंदा रहना है, सिर्फ जिंदा रहना। अगर जिंदा रहेगा तो अल्टीमेटली एक बेटा है, उसको पिता सारी प्रॉपर्टी दे ही देगा। सो सिमिलरली अगर हम सहन करते हैं तो भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि जैसे
पिता की संपत्ति अपने आप बच्चे के पास आती है। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे ये भक्ति जो गोलोक धाम का धन है अपने आप ही भक्त के पास चला आता है। जैसे उसकी संपत्ति में कुछ कहने की जरूरत, अपने आप आएगा। गवर्नमेंट भी मानती है हाँ भाई बाप की संपत्ति बेटे को मिलेगी ही। सो ऐसे ही ये भक्ति की संपत्ति अपने आप हमें मिल जाती है। यस, थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। प्रणाम। Anybody else? प्रणाम माता जी, मैं प्रीति बोल रही हूँ। आपने अभी प्रकृति का जिक्र किया जी, इसमें थोड़ा सा छोटे संक्षिप्त में अगर आप फिर से समझा दें तो थोड़ा सा